Good morning, everyone. Today's we are discuss about the Eysenck's theory of personality. It is another one of the theory and most common theory of personality that is called Eysenck's theory of personality because it's given by the Hans Eysenck. So first of all, we are talking about the Hans Eysenck and the biography of Hans Eysenck. So Hans Eysenck was born in Berlin and Germany on March 1916. Then he received his PhD in psychology from the University of London in 1940, and he has written 75 books and some 700 research articles in psychology. And his Eysenck, if you are heard about Eysenck and study about Eysenck, so most probably Eysenck's theory in a very important an important role play in nurture versus nature debate, है ना? Nature versus nurture debate in this situation and in this phenomena. Eysenck's theory is a very important role play, and behalf of this theory, Eysenck's theory, nurture versus nature debate is very popular. And one thing I also tell you कि Eysenck's if anyone asks to you कि which theory plays a very important role in nurture versus nature debate, then you can call Eysenck's theory, Hans Eysenck's theory. Next, we are discuss about the what did Eysenck's contribution in psychology. Now, what did Eysenck's contribution in psychology? So Eysenck's he developed a very important concept of neuroticism. Neuroticism is he developed by the Eysenck's only, and he's argued that biological form of emotional instability. He said that every personality is developed by the gene, है ना? And every personality is developed by gene. इन्होंने जैसे कि बोला था कि जो भी पर्सनालिटी होती है या जो भी हमारी पर्सनालिटी बनती है वो जीन्स के बेस पे होता है, और उसमें जो है इन्होंने इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट को लेस इम्पॉर्टेंट दिया था. ही टेल दैट इन्वायरमेंट इज़ नॉट इफेक्टेड इन योर पर्सनालिटी, ही इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट या फोकस्ड ऑन द जीन, है ना? तो इन्होंने इनका मानना ही यही था कि जो जीन जो होते हैं यही पर्सनालिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या होगी. Next, Eysenck says that कि personality is determined by 3 factors. According to Eysenck, your personality या your behavior, person's behavior could be represented by 3 factors. The first factor is introversion versus extroversion, है ना? अंतर्मुखा versus बहिमुखा, and neuroticism and stability and psychoticism versus socialism. तो इन्होंने ये 3 फैक्टर को ज़्यादा फोकस किया था कि जो इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन के बारे में बात की थी. न्यूरोसिटिज्म इन्होंने डेवलप ही किया था खुद से, एंड स्टेबिलिटी क्या होती है, एंड साइकोसिटिज्म वर्सेस सोशलिज्म क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्जन क्या होता है. तो एक्सट्रोवर्ट आर वेरी सोशल एंड क्रेव टू एक्साइटमेंट. तो एक्सट्रोवर्जन पर्सन आर वेरी सोशल एंड वेरी एक्साइटमेंट, एंड ही इज़ अ वेरी like a joyful person, है ना? And extroversion person is very optimistic, and he extroversion persons express our emotions, express our behavior to others, in front of others easily. If any troubles, अगर उनको कोई भी चीज़ें होती है, उनको कोई भी इमोशन होता है या कुछ भी होता है, वो दूसरे को तुरंत बता देते हैं. तो ये एक्सट्रोवर्जन्स में होता है, और ये जो है रिक्स लेना जानते हैं और इसमें रिक्स लेते हैं, ये रिक्स सीकर होते हैं, तो ये रिक्स लेना जानते हैं. अब हम बात करते हैं इंट्रोवर्जन. तो इंट्रोवर्जन जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज़ क्वाइट एंड रिजर्व्ड, एंड दे आर फ्रेंडली ओवर अराउज्ड, है ना? और ये बहुत ही ओवर अराउज होते हैं इंट्रोवर्जन, मतलब क्वाइट होंगे, रिजर्व होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, एंड अ वेरी ट्रेंडी ओवर द अराउज एंड सेंसेशंस स्टिमुलेशंस. अगर हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्जन जो पर्सन्स होते हैं, ही इज़ एबल टू टॉलरेट पेन, एंड बट इंट्रोवर्जन पर्सन है ये जो है टॉलरेबल नहीं होते. देन और जो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन पर्सन क्वाइट रहेंगे, ज़्यादा वो अराउज नहीं होंगे, सोशल नहीं होते हैं, ये दूसरे से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, अपनी एक्सपीरियंस अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे, तो ये इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं. अब हम बात करेंगे न्यूरोसिटिज्म.
तो न्यूरोसिटिज्म का मतलब ये होता है कि न्यूरोसिटिज्म इट डिटरमाइंड बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू आइजेंक्स का कहना था कि आपकी जो बिहेवियर है या आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो भी स्टिमुलेशन होता है वो डिपेंड करता है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, है ना। जो भी आपका इमोशनल आप जो भी रिएक्शन देंगे या जो भी करेंगे वो इट्स डिपेंड ऑन योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू आइजेंक्स। और इन्होंने कहा था कि जो स्टेबल पर्सन होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, तो उनका अगर सिंपैथेटिक वो किसी भी सिचुएशन में जो है स्टेबल क्लैम डाउन रहते हैं, लेवल हेडेड रहेंगे और बहुत ही शांति से रहेंगे और सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बट सम हाई इन न्यूरोसिटिज्म, अगर किसी को सम हाई न्यूरोसिटिज्म हाई है, उनमें ज़्यादा है, तो ऑन अदर हैंड मच मोर अनस्टेबल, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेंगे, प्रोन टू ओवर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, स्टिमुलाई को ज़्यादा रिएक्ट करेंगे एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्लैम डाउन। और उनको क्लेम डाउन करना, एक बार अगर वो किसी सिचुएशन में चले गए, गुस्सा हो गए, है ना, तो क्लेम डाउन करना बड़ा मुश्किल है अगर आप न्यूरोसिटिज्म उनको हाई है। तो ये आइजेंक्स का कहना था कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सनालिटी में, अगर कोई ऐसा पर्सन है लाइक गुस्सा हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, जल्दी क्लेम डाउन आप कितना भी मना रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अकॉर्डिंग टू हैंस आइजेंक्स। अब नेक्स्ट बात है साइकोसिटिज्म एंड नॉर्मैलिटी। तो साइकोसिटिज्म मतलब होता है लेकिंग इन एम्पैथी, है ना। साइकोसिटिज्म जो होते हैं वो लेकिंग इन एम्पैथी लेक होता है, टोन्स एंड एग्रेसिव होते हैं, ट्रबल्स, हम अपने आप को ट्रबल में डाल देंगे। जिनमें लेकिन ये साइकोसिटिज्म हाई होगा तो वो अपने आप को ट्रबल में डाल सकते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, रिस्क में फंस सकते हैं, कोई इशू बना देते हैं छोटी छोटी बातों का, है ना। लाइक हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हायर विद साइकोसिटिज्म। तो आइजेंक्स ने कहा था कि अगर किसी में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, तो वो हार्मोन अगर किसी में ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उनमें साइकोसिटिज्म बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को इश्यूज़ बनाना जानेंगे, है ना, अपने आप को ट्रबल में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके जो नॉर्मल बैलेंस बिहेवियर है इसको कहीं ना कहीं अगर हायर है आपको साइकोसिटिज्म तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट था और ये एक थ्योरी थी आपकी एजेंक्स थ्योरी, हैंस एजेंक्स ने दिया था। और हैंस एजेंक्स को जर्मनी के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये दी थी और उन्होंने ये 3 चीज़ों पे बात की थी कि जो आपकी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन पे बात की उन्होंने, है ना, न्यूरोसिटिज्म साइकोसिटिज्म पे बात की उन्होंने, तो ये सारी चीज़ों पे बात की उन्होंने। तो क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। तो देखो बेसिकली इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि इस कंक्लूड हम करते हैं कि कंक्लूजन ये है कि ये थ्योरी जो दी गई थी अकॉर्डिंग टू हैंस आइजेंक्स, कहना उनका ये था कि जो भी पर्सनालिटी है इट्स डिपेंड ऑन योर जीन, है ना। जैसे हमने बाकी थ्योरी देखी, एग्जांपल हम बताया कि ट्रेड थ्योरी में क्या हुआ। ट्रेड थ्योरी में एल्बर्ट साहब ने कहा कि वो एक ट्रेड होता है, एक विशेष प्रकार की आपके अंदर गुण होती है जो कि डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी। और हमने फ्रेड थ्योरी में क्या देखा, फ्रेड ने बोला कि वो 3 ईगो सुपर ईगो होते हैं, वो आपको मैनेज करते हैं पर्सनालिटी को। लेकिन आइजेंक्स का कहना है कि जीन जो हैं, जीन कहीं ना कहीं जो इम्पॉर्टेंट है, जीन है, नर्वस सिस्टम है, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी के लिए और वही आपको पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करता है। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी। होप you all understand very well.